Okay, so you all should be on your page 128 of the textbook. Okay, page 128. We were learning about the three features of what? Three features of what? No, new, new. These are the three features of what? Yes, it is new industrial policy, which was announced in the year. Yes. So we were learning about the three features of the new industrial policy, which was announced in 1991. Out of this, the first feature was liberalization, under which the government reduced all the restrictions and controls on the private sector. Only 18 industries were now kept under government control and remaining were set free. They had many relaxations provided. Okay, and uh, the important areas like railway, defense, atomic energy was kept by the government. Registration for other industries were cancelled. And if your factory or if your industry is not hazardous, it does not cause pollution, then you are free to establish it without any more of the government interference. Due to we had lot of advantages like the private sector had a vast scope of development, the global trade started increasing very fast, फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोर्ट एक्चुअली ज्यादा बढ़ गया ड्यू टू विच फॉरेन एक्सचेंज स्टार्टेड कमिंग इन अवर कंट्री एंड इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि विलेजेस हाईवेज एक्सेट्रा पे ज्यादा इंडस्ट्रीज बनने लगी इंफ्रास्ट्रक्चर वाज आल्सो डेवलप्ड. These were some of the advantages of liberalization. And today we are going to learn about the डिसएडवांटेजेस ऑफ द सेम. लिखने में तो बहुत अच्छा लगता है, पढ़ने में भी अच्छा दिखता है, बट उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है. ओके मन, लेट अस लर्न द डिसएडवांटेजेस. इन स्पाइट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड रेस्ट्रिक्शंस, मोनोपोली कुड नॉट बी चेक्ड. अभी भी जिसके पास मोनोपोली था, जो ओके नाउ टेल मी व्हाट इज मोनोपोली. आई एक्सप्लेन दिस मेनी टाइम्स बिफोर आल्सो. मोनोपोली क्या होता है? Yes, mono means single. Okay, there are some of the products which are still manufactured by a single producer, and due to which he can keep any amount of prices, due to which the customers were exploited. तो liberalization में relaxations तो बहुत सारे मिले, documentation बहुत decrease हो गया, but still monopoly could not be checked. Okay, Man and Aditya. As focus has only been paid on industrial sector, India has still remained backward in the development in agriculture field. ये जितने भी हमने features देखे, जितने भी advantages देखे, all these were only for the industries. Agriculture को भी कुछ benefits नहीं है, जबकि India is an agricultural country, right? ज्यादातर population agriculture पर depend करती है और उसी population को कोई benefits नहीं. So most of the people were lacking these advantages. Ishita, Rudra, Aditya. There has been increase in the disparity of income. Disparity means inequality. Underline the word disparity. Another meaning inequality. Income was not equal. The rich became richer, poor became poorer. अभी तक एग्रीकल्चर वाले बैकवर्ड ही थे. So there was disparity of income. And the fourth one, because of increase in imports and decrease in exports, foreign debt has increased. DEBT, उसको debt नहीं बोलेंगे, B will be silent. Do you know the meaning of debt? Anybody? Debt? Teria, Dhruvin, Om. यस कर्ज जिसको बोलते हैं हम लोन, राइट. तो
क्योंकि हमें बहुत सारे रिलैक्सेशंस मिल गए, क्योंकि हमें लगा कि एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, लेकिन हुआ क्या कि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करने पड़े, एंड बिकॉज ऑफ increase in imports the foreign exchange started going outside India, and due to this our debt, हमारा कर्जा जो था, loan money started increasing. Now this is not for all the industries, only for some of the industries. समझ में आ रहा है all of you, right? So these were some of the disadvantages of the liberalization. Overall अगर आप advantage disadvantage दोनों को कंबाइन करें तो देयर वर मोर ऑफ द एडवांटेजेस, हमें इसके बेनिफिट ज्यादा मिले हैं एज कंपेयर टू द डिसएडवांटेजेस. बट हाँ, ये सारे डिसएडवांटेज सबसे बड़ा वाज दैट ऑफ द एग्रीकल्चरल फील्ड. एग्रीकल्चर अभी भी पीछे का पीछे रह गया. समझ में आ रहा है? सो दिस वर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस. एनीथिंग यू डू नॉट अंडरस्टैंड, यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क. एनीबॉडी? एनी डाउट्स? यस जिनीश, हाँ बोलो. नहीं, राइट नाउ ऑल्सो इट इज एग्जिस्टिंग. जो कंट्रीज के ऊपर से रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए थे वो अभी भी हटे हुए ही थे. इट इज कंटिन्यूइंग एंड वी आर स्टिल टेकिंग द एडवांटेज ऑफ ऑल द बेनिफिट्स ऑफ लिबरलाइजेशन. टुडे ऑल्सो रिलैक्सेशंस आर गिवन. ओके, यस वत्सल. सॉरी, हाँ बोलो वत्सल. Okay, now comes the second feature, that is privatization. Most of the public sector units were either totally handed over to private sector or they were given an offer to start partnership along with the government. Due to which we got benefits of private sector as well as the government or the public sector. Okay? Privatization means the process in which ownership and management of industrial units under state control is handed over or transferred to the private sector. This is called privatization. Handed over और ट्रांसफर्ड, या तो पूरा दे दिया या तो पार्टली दे दिया. स्टेट कंट्रोल, स्टेट मतलब गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र नहीं. स्टेट मतलब गवर्नमेंट ओवर हियर. समझ में आ रहा है? जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. नाउ हाउ कैन प्राइवेटाइजेशन बी डन? प्राइवेटाइजेशन में दो चीजें हो सकती है, या तो पूरा दे दो या तो पार्टली दे दो. सेम इज रिटन ओवर हियर. आदित्य मान, firstly those areas which are reserved for public sector are opened for private sector. अभी तक बसेस सिर्फ गवर्नमेंट चला रही थी. अभी रोड ट्रांसपोर्ट इज ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो. पहले एसटी की बसेस चलती थी, अब नीता की, पटेल की, महासागर की, ईगल की सब चल रही है. ओके, सो नाउ पब्लिक सेक्टर इज ओपन फॉर प्राइवेट ऑल्सो. एनी डाउट्स इन द फर्स्ट मेथड? आदित्य, anybody? Okay, second, state keeps the ownership of state owned companies under its control. State मतलब government. So government keeps the ownership of state owned companies under its control and gives the charge of management to the private companies. मालिक हम रहेंगे, मैनेजमेंट आप करोगे. और state keeps management in its own hand and gives ownership to the private company. समझ में आ रहा है? You know the difference between ownership and management? That is decided previously कि कौन से बेसिस पर प्रॉफिट शेयर होगा, वो भी पहले कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट हो चुका होता है. ओके, नाउ यू नो द डिफरेंस बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. ओनरशिप में क्या होता है कि मैं मालिक और आप काम करोगे. यस, मैं मालिक होगी, काम आप करोगे. या तो गवर्नमेंट ये ऑफर देती है. दूसरी ऑफर क्या होती है, हम लोग काम करेंगे, आप मालिक. मतलब जो अथॉरिटी डिसीजंस होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर को जाएंगे. सो बोथ द वेज वर इम्प्लीमेंटेड अंडर प्राइवेटाइजेशन.
In some of the industries, government kept the ownership and management was given. In others, ownership was given, management was kept. I hope you are not getting confused. समझ में आ रहा है ना? Okay. Now इससे advantages क्या हुए? Go to the next page. There is increase in number of production units in industrial sectors. Many of the production units increase क्योंकि अब दोनों combine हो गए. Government का भी आएगा आ गया, private का भी है, तो both were combined. Production has been increased in capital intensive and consumable commodities due to privatization. Capital intensive means large scale industries. Underline the word capital intensive. मतलब जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होते हैं, शिप बिल्डिंग, आयरन एंड स्टील, वो सब industries are known as capital intensive industries. So underline the word and write the meaning. Capital intensive मतलब large scale industries. क्योंकि ये कंट्री में बहुत सारा कैपिटल चाहिए, क्योंकि बहुत सारा फंड चाहिए, तो प्राइवेट सेक्टर कहीं ना कहीं उसमें पीछे रह जाता है. लेकिन अब गवर्नमेंट इज फंडिंग, गवर्नमेंट के पास तो वैसे भी बहुत सारे पैसे हैं, तो इससे क्या हुआ दैट द लार्ज स्केल इंडस्ट्री स्पेशली द कंज्यूमेबल कमोडिटीज वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगे. ओके, and working capacity of public sector has improved due to privatization of public sector. Working capacity, lot of dedication, lot of hard work, lot of sincerity was seen in the government employees, same as those of private employees. वो हमने उस दिन भी बात की थी, याद आ रहा है? Yes. Okay. Now with every हाँ बोलो जिनेश. चलो, now you know that everything has plus and minus points. Privatization also has some disadvantages. Let us see what. Economic power has centralized as a result of privatization, because of which level of monopoly has increased. तो जब तक कोई भी चीज गवर्नमेंट के हाथ में होती है, तो they always keep the public welfare first and profit second. है ना? गवर्नमेंट, we know we are living in a democracy. तो डेमोक्रेसी में क्या होता है? पब्लिक फर्स्ट, प्रॉफिट सेकेंड. तो पब्लिक इज नेवर एक्सप्लॉइटेड अंडर पब्लिक सेक्टर. अब सब जा रहे हैं प्राइवेट के हाथ में, तो प्राइवेट के हाथ में जाते क्या हुआ? प्रॉफिट आ गया नंबर 1 पे, पब्लिक वेलफेयर आ गया नंबर 2 पे. तो मोनोपोली वाला जो प्रॉब्लम है दैट अरोज इन प्राइवेटाइजेशन ऑल्सो. सभी चीजों के प्राइसेस धीरे धीरे इंक्रीज होने लगे. Okay. Second, cottage industries have not developed properly due to privatization. Only large industries have been benefited. Again, actually इस पॉलिसी का नाम ही है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी. तो मोस्ट ऑफ द एडवांटेजेस आर फॉर द इंडस्ट्रीज ओनली. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर को तो कुछ बेनिफिट है ही नहीं. Now, जब आप एग्रीकल्चर को इग्नोर करते हो, मतलब आप कंट्री के 70% लोगों को इग्नोर करते हो, ये जो भी बेनिफिट जा रहा है इट इज ओनली फॉर द 30% ऑफ द पॉपुलेशन. समझ में आ रहा है? सो द सेम डिसएडवांटेज वाज सीन इन लिबरलाइजेशन, सेम इन प्राइवेटाइजेशन ऑल्सो. छोटे इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर को नो बेनिफिट्स. एंड द लास्ट वन, प्राइसेस हैव नॉट रिमेन्ड अंडर कंट्रोल ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन. जब तक गवर्नमेंट के हाथ में था, गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है कि वो प्राइसेस एक लिमिट से ऊपर नहीं जाने देते. Private, they are allowed to do anything, right? So prices have not remained under control due to privatization, and this has led to the problem of price rise. Price rise वाला पूरा चैप्टर हम करने वाले हैं इसी पोर्शन में आगे जाके. तो प्राइस राइज, why does the price rises, उसमें वापस ये चीज आएगी, राइट? प्राइवेटाइजेशन में वी आर लर्निंग प्राइस राइज, अभी प्राइस राइज में वापस ये लर्न करेंगे, तो तब तक ये दिमाग में सेव करके रखना. Okay, so these are some of the disadvantages. Number 1, small scale industry still not benefited. मोनोपोली का डर अभी भी है, और क्योंकि मोनोपोली है prices will obviously rise. Okay, so these are some of the disadvantages. Yes, Muskan sir, what is your doubt, beta? चलो, now comes the third and the last feature, that is globalization.
Globalization is the process of connecting one country economy with the world economy. We are open to the world for inviting the industries and for our industries going to other countries also. As a result of which, flow of goods, services, technology and labor is easily available in the world. हमारी कंट्री के गुड्स, हमारे सर्विसेज, सर्विसेज मतलब इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, टेक एक्सपर्ट्स, वो सर्विसेज देते हैं, राइट? हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा लेबर, लेबर मतलब द एम्प्लॉयज जो बाहर की कंट्रीज में जॉब के लिए जाते हैं, right? So goods, services, technology, labor of each and every country is available to other countries easily. Globalization. Okay? And due to globalization, what happened? Following improvements have taken place due to globalization. Obstacles of trade between two nations have been removed. जो बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन था, बहुत सारे पेपर वर्क थे, वो कम हो गए. Okay, such a condition has been created so that capital exchange can easily take place between two nations. कैपिटल, अगर आपको यहाँ से 10 लाख रुपए कनाडा ट्रांसफर करने हैं तो वेरी इजीली ऑनलाइन आप कर सकते हो, राइट? बीच में बैंक में पहले क्या होता था, आप बैंक में चेक डालोगे, फिर आपका चेक वहां पर ट्रांसफर होगा, फिर वहां पर क्लियर होगा, फिर आपके अकाउंट में से मनी डेबिट होंगे, वहां पर क्रेडिट होंगे. This used to take 15, 20, 25 days. And now you know that it is possible not less than 20 minutes. 25 days तो छोड़ो, 5 minutes में हो जाता है. Right? So this is a great advantage. Obstacles in the way of exchange of technology have been removed. Technology तो आपको पता ही है, अभी recently हम कितनी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, है ना? अभी यहाँ पर आपको पता है कि वो जन्मजय जब ऐसे 2 अपना 9th का चल रहा है तो वहां बैठे बैठे भी एग्जाम लिख रहा था. Globalization, countries are coming nearer to each other. Okay, and free exchange of labor may be there among different nations of the world. Free exchange of labors. Labor here means the workers. Workers मतलब वो मजूरी करते वो वाले नहीं. The people who seek job in other countries, they can travel. वो लोग वो क्या बोलते हैं, टेम्पररी वीजा पर वहां पर जाकर सेटल का हो सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन देयर फीडबैक फिर वापस उनका वीजा कंटिन्यू करना, रिन्यू करना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट लेबर कैन ट्रैवल फ्री. फ्री मतलब बिना टिकट ऐसा वाला फ्री नहीं, बट दे कैन ट्रैवल इजीली. आई होप आई एम क्लियर. यस, ओके. Now effects, mixed effects of globalization have been there on Indian economy. Mixed effects, अच्छा भी है, बुरा भी है. Many advantages and disadvantages are there, which are as follows. Let's see the advantages first. Foreign direct investment is encouraged due to globalization. बहुत सारी कंट्रीज ने बाहर से हमारी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया. हमारी इंडियन कंपनी के शेयर्स many foreigners have started purchasing. इससे क्या होगा that our India based industries get lot of foreign investment, and second thing, foreign exchange comes towards India. समझ में आ रहा है all of you? Foreigners can invest in our country. तो ये तो है एडवांटेज, लेकिन इसी को हम डिसएडवांटेज के फॉर्म में भी ले सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे यहाँ के रिच पीपल बाहर की कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे फॉरेन एक्सचेंज जा भी रहा है. समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू? दिस इज अ टू वे रोड. ओके, सो एफडीआई इज एनकरेज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. हमारी कंपनीज को इन्वेस्टमेंट मिलता है. सेकेंड, goods produced in the developed countries can easily be obtained due to globalization. आपको पता है कि आप जस्ट एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करो. सपोज टेक एन एग्जांपल, यू वांट टू बाय अ टी शर्ट. जैसे ही आप टी शर्ट पर सर्च करोगे आपको दुनिया भर की कंपनीज के टी शर्ट्स के बारे में एडवर्टीजमेंट मिलेगी. वेरी इजी. और जो भी कंपनी को आप सिलेक्ट करो, जो भी कंट्री उसका मैन्युफैक्चरर है, डायरेक्ट आप क्लिक करो और वहां से पार्सल आ जाएगा आपके घर. सो द गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द डेवलप्ड कंट्रीज आर इजीली अवेलेबल ओवर हियर. आपको उसको एक्सपोर्ट करने के लिए लंबी प्रोसीजर नहीं करनी पड़ती. Okay. Number 3,
Developing countries like India can withstand competition at international level due to globalization. हमें बहुत सारी एडवर्टीजमेंट करने के लिए या एक एक कंट्री को हमें बोलने नहीं जाना पड़ता कि हमारी प्रोडक्ट ऐसी है, इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसके ये प्राइसेस है. नो, वंस यू क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते ही होगे, आपको शायद पता ही होगा कि कैसे होता है ना. तो सपोज टेक एन एग्जांपल कि मुझे कोई प्रोडक्ट परचेज करनी है, तो मैं नम्र की कहीं इंडस्ट्री में जाऊंगी, जानवी के कंपनी में जाऊंगी, मुस्तान के कंपनी में जाऊंगी, देन आई विल सिलेक्ट. बट अब ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ है, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी आप सभी के प्रोडक्ट्स मेरी स्क्रीन पर ही दिख रहे हैं, है ना. फिर अगर नम्र डेवलप्ड कंट्री में से है, जानवी डेवलपिंग कंट्री में से है, मुस्तान से बैकवर्ड कंट्री में से है, लेकिन उसकी प्रोडक्ट अच्छी है, तो यहाँ पर बैठे बैठे आई कैन स्टडी ऑल द प्रोडक्ट्स एंड आई कैन कम टू नो, मतलब एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कैन बी डिक्रीज्ड बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी. समझ में आ रहा है? सो मेनी ऑफ द इंडियन प्रोडक्ट्स ऑल्सो कैन बी सोल्ड इन अदर कंट्रीज very easily, as a result of which we earn lot of foreign exchange, right? I hope you can understand this advantage. Yes. Now disadvantage, वो तो होंगे ही साथ में. Expected success has not been attained in finding solution to the problems of poverty and unemployment. Poverty और unemployment अभी वहां का वहीं है, right? जो जॉब आपको यहाँ मिल सकती थी वो बाहर मिलती है, जो बाहर मिल सकती थी वो यहाँ मिल सकती है. बट इससे पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट में कुछ भी डिफरेंसेस नहीं हुआ. जिसको एम्प्लॉयमेंट मिलना था उसको कहीं पर भी मिल जाता है, बट अनएम्प्लॉयड आर स्टिल अनएम्प्लॉयड. अगेन एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट का चैप्टर भी हम लोग इसी सेक्शन में करने वाले हैं. ओके. सेकेंड, developing countries have not acquired proper benefits of increase in export which they should have acquired. Developing countries को अभी भी उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, क्योंकि अभी भी वो डेवलपिंग कंट्रीज वाले लिस्ट में है. जो ब्रांडेड चीजों को प्रिफर करता है वो उस तरफ देखेगा ही नहीं, वहीं पर जाएगा. समझ में आ रहे? सपोज टेक एन एग्जांपल, जब आप रेस्टोरेंट्स में जाते हो पिज्जा खाने के लिए, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि मैकडोनल्ड्स में जाते हैं या पिज्जा हट में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, लेकिन हमारे रोड के पास ही बाहर जो सब्जी मंडी है वहीं पर एक लोकल लारी वाला खड़ा है और वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही हाइजीनिक पिज्जा बना रहा है, बट वी डोंट टेक नोटिस ऑफ इट. वो भी वही का वही है. व्हाई? बिकॉज वी प्रिफर ब्रांडेड थिंग्स. कॉस्टली है तो अच्छा है,